Assalamu alaikum everyone and warm greetings. Welcome to Learn Correct English, and today we are again back with another source on the language theory. So firstly we have discussed about the language theory regarding from the perspective of religion, and then from the perspective of how social interaction with these sounds invented language. So from now for today, we will be having the discussion on the physical adaptation source. So, what does this theory say about the development of language, or how the words are originate or developed, or how they कैसे हमारी लाइफ में आए हैं, how they came into our life. So in this lecture we would be dealing with the physical adaptation. Physical adaptation basically means, like for example in human beings, what is the purpose of our teeth, what is the purpose of our tongue, our lips, our larynx and pharynx, and things regarding that. So without wasting any further time, I would request you people to subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so you may never miss the recent videos. So let's start. The physical adaptation source. What does this source says? This says that instead of looking at types of sounds as the source of human speech, I would be bilingual here using Urdu and English language. Instead of looking at types of sounds, like हम इस चीज़ को एक साइड पे रखते हैं कि किस तरह की साउंड्स हैं जो हम जिससे जान सकें कि हमारी ह्यूमन स्पीच जो है उसका सोर्स क्या था. ठीक है, we can look at the types of physical features human possess. Like I said earlier, that we would be looking at the physical features of the human beings, the lips, the tongue, the mouth cavity. Alright, so उन सारी चीज़ों का क्या रोल है हमारी ह्यूमन स्पीच में. ठीक है, especially those that are distinct from other creatures which may have been able to support speech production. अगर आप किसी और creature को देखें तो वहां पर speech production इस तरह से नहीं है जिस तरह human beings में extraordinarily developed है. So we can start with the observation that at some early stage our ancestors made a very significant transition to an upright posture. So अगर आप बहुत अर्ली स्टेजेस से ह्यूमन बीइंग को देखें तो एक अपराइट पोस्चर होता है ह्यूमन बीइंग का. वो एक बैकबोन की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट उसका एक पोस्चर होता है, एक स्टैंडिंग होती है उसकी. विद बाईपेडल उसके क्या होते हैं, 2 फीट होते हैं जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. और फिर ये जो फ्रंट लिब्स हैं आपके, मतलब जो हैंड्स हैं, ठीक है, उनका एक रिवाइज रोल है ह्यूमन बीइंग्स में एज कंपेयर टू दी एनिमल्स. एनिमल्स में क्या होते हैं, उनके जो हैंड्स होते हैं दे आर ऑन दी ग्राउंड ऑल्सो. सो उनका अपराइट पोस्चर नहीं होता, उनका वर्ड ये पोस्चर होता है हॉरिजॉन्टल. ठीक हो गया. सो ये एनिमल्स का पोस्चर होता है, और ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, अपराइट पोस्चर. सो ये सारी चीजें अगर आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे, इफ यू आर inquired upon the physical adaptation source, so you have to mention all these things. जिस तरह से कोई भी आपने अपनी बात कन्वे करनी होती है या आंसर बनाना होता है तो उससे पहले आप एक बैकग्राउंड बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं जिसके ऊपर आप फिर आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो आपकी बेस ये है कि एनिमल्स जो हैं वो अपराइट पोस्चर नहीं होता उनका, और ह्यूमन बींग्स का होता है. ठीक है, एज वी आर डिस्कसिंग हियर द फिजिकल अडेप्टेशन, मतलब ह्यूमन बींग्स फिजिकली कैसे हैं. So the next point is, some effects of this type of change can be seen in physical differences between the skull of gorilla. और बहुत अर्ली मैन था, उन दोनों के स्कल में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो वो 60,000 years ago स्टडी कर दिया गया है. ठीक है. Some effects of this type of change can be seen in physical differences between the skull of a gorilla and that of a Neanderthal man from around 60,000 years ago. ये effects दोनों में
जो चेंज थी वो हमें 60,000 years ago ही पता चल गई थी, अगर हम उनके स्कल्स को स्टडी करें। एक गोरिल्ला और एक मैन का स्कल में बहुत डिफरेंस है। सो द reconstructed vocal tract of this man suggests that some consonant like sound distinctions would have been possible. So उन्होंने इन दोनों का वोकल ट्रैक जो है उसको स्टडी किया, तो उसमें उन्होंने क्या चीज देखी कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक मैन है, उसके वोकल ट्रैक में कॉन्सोनेंट साउंड्स और इसी तरह डिफरेंट बाउल साउंड्स हैं। उन इन सारी साउंड्स की जो डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है, मतलब का, ब, फ, ट, ये सारी साउंड्स की डिस्टिंक्शन है, मतलब ये सारी साउंड्स डिफरेंट वेज में प्रोड्यूस हो रही हैं। सो ये जो डिस्टिंक्शन है ये किसको हासिल है? ये जो एक ब्लेसिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स है, ये एक ह्यूमन बीइंग को हासिल है। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट फिजिकल adaptation feature we are going to study today is this: teeth. So human teeth, we have to look their position. They are upright, not slanting outwards like those of apes. अगर आप apes के teeth देखें तो वो बाहर की तरफ को slant किए होते हैं, ठीक है। However, if we see the teeth of human beings, they are always in the upright position. ये आपका जॉ है, ठीक है, और ये जो आपके टीथ हैं ये अपराइट पोजीशन में होते हैं। चले, इफ वी अज्यूम दिस कि किसी इंसान के अपराइट पोजीशन में नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर स्लांट होगा तो इतना सा स्लांटेड होगा, ठीक है। इफ वी कंपेयर दिस स्लांट टुवर्ड्स दैट ऑफ द एप, तो एप में क्या होता है, उनके जो फ्रंट टीथ हैं वो ज्यादा आगे को निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो हमारे इन टीथ की जो अपराइट पोजीशन है, इसका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ना। वी हैव टू स्टडी दैट। दे आर रफली इवन इन हाइट। इवन होते हैं अपने हाइट में, एक ही तरह के आपकी हाइट है टीथ की, अगर आप फोकस करें इस वक्त अपने टीथ पे, ठीक है। सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर ripping or tearing food and seem better adapted for grinding and chewing. So they are also very helpful in making sounds such as f and w. ठीक है। तो उन्होंने इस आपके टीथ के करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताए हैं, इसको आप लोग एज इट इज याद कर लें। और इन टीथ का साउंड स्पीच में क्या रोल है, वो ये है कि आप अपने जॉ को इस तरह से क्लोज करें जिस तरह से इस पिक्चर में है, और इस तरह क्लोज करके फ कहें, फ, फ, ठीक है। और व कहें, व। तो आप देखेंगे कि जो आपका नीचे वाला लिप है, लोअर लिप, दैट इज बेसिकली टचिंग द फ्रंट टीथ, ठीक है। तो जब वो फ्रंट टीथ को टच कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो आपके टीथ हैं ये उसको एक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से फ, फ आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्शन के साथ। तो ये फ और व की साउंड प्रोडक्शन में आपके टीथ का बहुत अहम रोल है। So now let us move towards another physical adaptation feature, that is lip. So human lips have much more intricate muscle interlacing than is found in other primates. So इधर आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि how does the physical adaptation features of a human being differ with that of animals? So आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ह्यूमन लिप्स के इंट्रिकेट मसल्स होते हैं, और वो यही इंट्रिकेट मसल्स प्राइमेट्स में एब्सेंट हैं। इसी तरह आप टीथ का बता सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में अपराइट नोशन में या उस पोजीशन में टीथ हैं, और एप्स में स्लांटिंग है। Their resulting flexibility certainly helps in making sounds like प and ब, ठीक है। अब अपने दोनों लिप्स को क्लोज करें और यहाँ अपनी टंग से आप प्रोड्यूस करें फ, फ। आप देखेंगे ये दोनों लिप्स आपके बिल्कुल क्लोज मोशन में आके फिर ओपन होंगे, फ, फ। एक अंदर आपकी गैस ट्रैप हो जाएगी आपके इस वोकल कैविटी में, अंदर जो माउथ की ओरल कैविटी है, उस ओरल कैविटी को जब आप रिलीज करेंगे गैस से, फ, जैसे ही आपके लिप्स दोनों आगे पीछे ऊपर की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, वैसे ही आपको फ की आवाज
जो है फील होगी, इसी तरह ब की आवाज फील होगी, इसी तरह म की आवाज फील होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये जो आपकी लिप्स की फिजिकल अडेप्टेशन है, मतलब जैसे आपके लिप्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं या नेचर ने बनाए हैं, सो यू विल सी द फंक्शन ऑफ the shape of your lips. Like, why are they so important in the development or the production of the sounds like p, b, v, m? ठीक है। So अगर आप इस वक्त imagine करें, if you assume this thing that one of your lips is not there and we are not adapted in that way, या हमारी जो adaptation है दोनों lips की वो उस तरह से ना होती जिस तरह अभी currently है, so we won't be able to produce these sounds like p, b, m, v. All right. So I hope that you have understood my point. So let us move towards the next physical adaptive feature, that is mouth. So the human mouth is relatively small compared to other primates. अब आप देखें पहली लाइन में प्राइमेट्स के साथ बार बार एनिमल्स के साथ आपकी कंपैरिजन हो रहा है। सो जो ह्यूमन माउथ है that is very small in size as compared to the mouth of primates. And it can be opened and closed rapidly and contains a smaller, thicker, and more muscular tongue. So there is tongue in your mouth. All right, so now we would be looking at the function of tongue. Okay, so this basically this heading is wrong here. This is on tongue. This is on tongue, and it contains a smaller and thicker and more muscular tongue. Okay, so your mouth contains a smaller, thicker, and more muscular tongue, which can be used to shape a wide variety of sounds inside the oral cavity. जो आपकी oral cavity है, जो mouth के अंदर की जितनी भी cavity है, जिसके अंदर आपकी टंग है, आपके टीथ हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो टंग है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साउंड्स में वेरिएशन को प्रोड्यूस करना। द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज स्मॉल डिफरेंसेस टेकन टुगेदर इज अ फेस with more intricate muscles interlacing in the lips and mouth. अगर आप टंग से थोड़ा ऊपर की सतह पे चले जाएं तो टंग, ओरल कैविटी, ये सब चीज़ें मिला के आपका फेस बनता है, ठीक है। और फेस के अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसल्स हैं जिन्होंने लिप्स और माउथ को इकट्ठा रखा हुआ है और इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं वो सारे मसल्स, capable of a wider range of shapes and a more rapid delivery of sounds produced through these different shapes. All right, so now we have to move forward. The next, we have larynx and pharynx. The human larynx और वॉइस बॉक्स। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो वॉइस बॉक्स है उसको larynx कहते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं और आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। So the larynx or voice box differs significantly in position from the larynx of other primates. अब यहाँ पर देख लें दोबारा से, वो आपको एनिमल्स के साथ कंपैरिजन दे रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो larynx है ना, और उसका जो पोजीशन है, that is comparatively higher, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन फिजिकल डेवलपमेंट द assumption of an upright posture moved the head more directly above the spinal column and the larynx dropped to a lower position. Okay, so here they are saying कि जो ह्यूमन बीइंग का एक अपराइट पोजीशन है, जो उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट है, जब आप बैठे हैं, सीधा बैठे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो इस वक्त आप अपराइट पोस्चर में बैठे हुए हैं। आपका हेड सबसे ऊपर है, फिर आपका माउथ है, और माउथ के नीचे आपका ये जो थ्रोट एरिया है उसमें आपको लेरिंग्स मिलेगा और आपको उधर ही फेरिंग्स मिलेगा। तो आपने देखना है कि जो ऊपर वाला एरिया होगा आपके नोज नेजल कैविटी से जो नीचे आ रही हैं, ये जो एक एरिया आ रहा है, ठीक है, इसको आप फेरिंग्स कह देंगे। और जो नीचे माउथ के साथ है सारा, यहाँ पर जो आपका वोकल ट्रैक है सारा, जो इस फेरिंग्स के नीचे कनेक्ट होगी ट्यूब, उसको आप क्या कहेंगे, जिसके अंदर आपका वॉइस बॉक्स है उसको आप कहेंगे लेरिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपका लेरिंग्स जो है वो नीचे है। दिस क्रिएटेड अ लॉन्गर कैविटी कॉल्ड द फेरिंग्स। क्या फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स ये है कि आपका जो अपराइट पोस्चर है
उधर आपका सबसे पहले हेड है और उसके बाद मोर डायरेक्टली अबव द स्पाइनल कॉलम, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर जो चीज है उसको, जो कैविटी है उसको आप फेरिंग्स कहेंगे। और फेरिंग्स से नीचे जो, मैं आपको एक मिनट एक डायग्राम भी दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली जो सारी केविटी है, ये जो नेजल नोज से सारी आ रही है यहाँ तक, ये वाली सारी केविटी आपकी फेरिंग्स है। और ये इसके नीचे वाली है जहां पर आप ये देख रहे हैं, ये एक स्टॉप देख रहे हैं, इधर एक स्टॉपर लगा हुआ है नेक में, ये वाली सारी कैविटी आपकी लेरिंग्स है। ठीक है। सो नाउ वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ फेरिंग्स एंड लेरिंग्स. So now we would be reading pharynx. The pharynx above the vocal cords, आपके जो vocal cords हैं उसके ऊपर है pharynx, which acts as a resonator. So pharynx क्या करता है, आपकी आवाज में रेजोनेशन लाता है। रेजोनेशन मतलब कि vocal cords जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे उनके अंदर से वॉइस पास होगी, तो फिर उसको रेजोनेट करवाना है to increase range and clarity of the sounds produced via the larynx. ठीक है। अब साउंड से प्रोड्यूस होगी larynx में, ठीक है, वॉइस बॉक्स में साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन उस साउंड को अब क्लियर भी तो बनाना है ना। तो उस साउंड को क्लियर बनाने के लिए pharynx comes to play the major role. One unfortunate consequence of this development is that the lower position of the human larynx makes it much more possible for human to choke on pieces of food. सो यहाँ पर उन्होंने ये बात की है कुछ क्या कहते हैं, हर चीज़ के पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं और नेगेटिव साइड्स भी होती हैं. सो बेसिकली द राइटर जॉर्ज यूल हेयर इज telling us that one of the disadvantages of the placement of human larynx in the lower position is that कि अगर आप कोई भी खाना शाना खा रहे हैं और आप बात करने लगे हैं, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है आप चोक कर जाएं. ठीक है, आपके फूड के पीसेस उस लिरिक्स में एंटर हो जाएं जो वॉइस बॉक्स है. ठीक है. Monkeys may not be able to use their larynx to produce speech sounds, but they do not suffer from the problem of getting food stuck. अब देख लें, साथ ही कंपैरिजन उन्होंने फेरिंग्स का भी दे दिया है कि मंकीज में क्या होता है कि उनका फूड स्टक नहीं होता उनके विंड पाइप में. ठीक है. In evolutionary terms, there must have been a big advantage in getting this extra vocal power, that is, a larger range of sound distinctions to outweigh the potential disadvantage from an increased risk of choking to death. So, in these lines, the writer George Yule is telling us कि जो एडवांटेज है ना ये लोअर पोजीशन का, जिसपे आपका लेरिंग्स है, वो इतना बड़ा एडवांटेज है कि आपका जो डिसएडवांटेज है कि आप फूड च्यू करते हुए चोक कर जाएं या आपको गोता लग जाए, ठीक है, तो वो उस डिसएडवांटेज से बहुत बड़ा है इसका एडवांटेज इस पोजीशन का लेरिंग्स की. ठीक है. वो कहते हैं क्यों एडवांटेज है, क्योंकि आप साउंड में डिस्टिंक्शन ला सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. These are all the physical adaptive features present in a human being that have helped humankind to make a variety of sound and to distinguish between two sounds like p and b. All right. So do learn all these features and do prepare the comparison between the physical features of an animal and a human being. So that is all from Learn Correct English for today. Please subscribe, share, and comment.